Hello guys, welcome you all in Arkansas Sports video. As we had seen our supplementary reading book Vistas, and the first chapter is the third level written by Jack Finney. So student, we had seen that Charlie, a 31-year-old dweller of the city, he not only believe in the existence of the third level but also claims to have been there. So Charlie talks about this problem to his psychiatrist friend, and his friend calls it a waking dream wish fulfillment. He also says that modern world is full of insecurity, fear, worry and war, and everybody want to escape from it. He also compares it with Charlie's hobbies like stamp collection. Once Charlie entered the Grand Central Station and got lost. He had lost his ways a couple of times earlier too. Once he entered the lobby of the Roosevelt Hotel, and while other time he emerged at an office building. Charlie compares Grand Central Station with a tree. Like tree, Grand Central Station is also increasing day by day, and maybe a long tunnel under the city that nobody knows about them, and people used it as an exit. So Charlie also used it for escape from the reality. Once he reached the third level, that is completely different from the other levels. There were small rooms, fare ticket windows, train gates, wooden information booth. He also discovered brass spitons you have to seen in the picture, flickering gas lights, everybody dressed like 1890s with old-fashioned beard, sideburns, fancy mustache, engine with funnel shape stack. engines भी आप देख सकते हैं जिसका स्टैक जो चिमनी है वो फनल शेप की है. फनल शेप मतलब कीपर आकार की है. So he want to confirm that, and went to the newsboy and noticed that the date on the newspaper, the world, is printed on June 11, 1894. So after the confirmation, he went to the ticket window and bought 2 tickets of Galesburg, Illinois, because Galesburg is a wonderful town with big houses, huge lawns, plenty of trees, people with lots of leisure time. So he wanted 2 tickets of Galesburg with his wife Louisa. So student, we had seen that portion of the chapter, and now let's continue our rest of the chapter. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband. जब वो टिकट विंडो पे टिकट बाय करने के लिए गया, तब जो क्लर्क टिकट विंडो पे बैठा था वो उसके फैंसी हेडबैंड को देख रहा था. फेयर मीन्स भाड़ा. जब वो भाड़ा काउंट कर रहा था तो उसके फैंसी हेडबैंड को देखने लगता है. बट ही फिगर द फेयर, लेकिन देखते देखते वो साथ में भाड़ा भी काउंट कर रहा था. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास में 2 कोच टिकट के लिए इनफ पैसे थे कि मैं एक तरफ का वन वे का जो भाड़ा है वो पे कर सकता था. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी. लेकिन जब मैं पैसा काउंट कर रहा था और काउंट करते करते मैंने ऊपर नज़र उठा के देखा तो क्लर्क जो है वो मुझे घूर रहा था. ही नॉटेड एट द बिल्स, और उसके बाद वो अपना मनी काउंट करने में जुट जाता है. दैट इज़न्ट मनी मिस्टर, ही सैड. वो कहता है कि ये पैसा नहीं है मिस्टर. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार. और अगर तुम मुझे स्किन करने की, चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक भाग के नहीं जा सकते. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम. और उसके बाद उसके बगल में रखा हुआ जो कैश ड्रॉअर था उसको वो देखने लगता है. ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल. हाँ, जो कैश ड्रॉअर में जो पैसे रखे थे वो पुराने स्टाइल की करेंसीज थी. हाउ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज. हम जो अभी पैसे यूज़ करते हैं उससे काफ़ी बड़े देखने में. एंड डिफरेंट लुकिंग, उनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट. सो आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फॉर. इसलिए मैं इतना देखने के बाद मैं मुड़ा और तेज़ी से वहाँ से निकल गया. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि वो 1894 का ही जेल क्यों ना हो, जेल तो आखिर जेल होता है, उसमें कुछ नाइस हो ऐसा तो हो नहीं सकता. एंड दैट वॉज दैट. और इतना ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ. आई लेफ्ट द सेम वे आई कैम. आई सपोज द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक.
और जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से वापस निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जब लंच आवर हुआ तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से $300 का जो अमाउंट था वो निकाला। नियरली ऑल वी हैड, जितना मेरे पास था वो सब कुछ निकाल लिया एंड बॉट आउट ऑल करेंसी, और मैंने उसको ऑल करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इस बात से मेरा जो फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट वो काफ़ी वरीड हुआ। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आप किसी भी कॉइन डीलर से अपना जो मनी है वो कन्वर्ट करवा सकते हो, बट आपको उसके बदले में कुछ प्रीमियम पे करना होता है, दैट मीन्स चार्ज पे करना होता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे $300 के $200 से भी कम जो करेंसी है वो मुझे मिली, बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। एग्स वर 13 सेंट अ डज़न इन 1894, क्योंकि 1894 में जो एग्स मिलते थे एक डज़न वो 13 सेंट के हुआ करते थे, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे 300 के बजाय 200 से भी कम पैसे मिले। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उसके बाद जब पैसा कन्वर्ट करवाने के बाद मैं उसी कॉरिडोर को ढूंढने के लिए गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाने के लिए थर्ड लेवल के, तो वो कॉरिडोर मुझे मिला ही नहीं। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। लुइज़ा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लुइज़ा काफ़ी वरीड हुई जब मैंने ये सब कुछ उसको बताया तो। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं अब और पागलों की तरह थर्ड लेवल को ढूंढूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय के बाद मैंने खुद ही स्टॉप कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, और मेरे स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबी था उसमें जुट गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन अब मैं और लुइज़ा हम दोनों मिलकर एवरी वीकेंड को थर्ड लेवल फाइंड आउट करने जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में प्रूफ है कि थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट करता है। वो प्रूफ क्या है आगे पता चलेगा। माय फ्रेंड सैम विनर, अभी एक नया कैरेक्टर है सैम विनर, देखते हैं ये कौन सा कैरेक्टर है, ये नया है या पुराना है, और बाद में पता चलेगा। माय फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, सैम विनर जो है खबर मिलती कि वो डिसअपियर्ड, गायब हो गया, मिसिंग हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय, लेकिन मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया क्योंकि सैम जो है वो एक सिटी बॉय है, सिटी में रहने वाला लड़का है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं हमेशा उसे गेल्सबर्ग के बारे में बातें किया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं उसे बताया करता था कि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा मुझसे चार्ली से कहा करता था, उसका फ्रेंड सैम विनर, कि उसे उसकी जो बातें हैं गेल्सबर्ग की वो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और मुझे पूरा कंफर्म है कि वही वो जगह है जहाँ पर सैम गया होगा। ऑल राइट, इतना ही सब कुछ मैं जानता हूँ जो कि सही है। इन 1894 वो 1894 में गेल्सबर्ग में पहुँच चुका है। बिकॉज वन नाइट फिशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक दिन रात को जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में कुछ ढूंढ रहा था तब मुझे मिला। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशू, जब कभी भी नया स्टैम्प इशू किया जाता है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज़ देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स। स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं और उसे मेल कर देते हैं एनवेलप में लगाकर स्टिक करके अपने आप को ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले ही दिन, जब जिस दिन वो इशू हुआ उसी दिन वो अपने आप को मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और उस पर जो पोस्ट मार्क लगाया जाता है वो डेट को प्रूव करता है कि इस डेट को ये रिलीज़ हुआ और इसी डेट को मैंने इसे मेल कर दिया था। द एनवेलप इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, उसे ही फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, उसे कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि उस एनवेलप के अंदर ब्लैंक पेपर रखा होता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर। उस दिन रात को जब मैं अपने फर्स्ट डे कवर्स को फाइंड आउट कर रहा था, मुझे कुछ मिला जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। क्या था वो? इट वॉज़ देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने मेल किया था इसे मेरे ग्रैंड फादर को एट हिज़ होम इन गेल्सबर्ग, उनके होम टाउन जो कि गेल्सबर्ग में था, उस एड्रेस पर किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को मेल किया था। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, उस एनवेलप पे लिखा हुआ एड्रेस यही बता रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वह वहाँ पर जुलाई 1894 से वो एनवेलप पड़ा था। द पोस्ट मार्क शोज द डेट, क्योंकि उस पोस्ट मार्क पर जो डेट लिखा था वो यही बता रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे ये सब कुछ याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड,
उस स्टैम्प पर 6 सेंट का स्टैम्प लगा हुआ था। वो एनवेलप के ऊपर डल ब्राउन कलर का था और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर लगा था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडफादर इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। नेचुरली ऐसा होता है कि जब कभी भी ग्रैंडफादर को कोई मेल करता है एनवेलप, तो वो उनके कलेक्शन में शामिल हो जाता है। एंड स्ट्रेट देयर, और वो हमेशा उनके कलेक्शन में रहता था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन, जब तक कि मैं उसे खुद उठा ना लूँ और उसे खोल ना दूँ, उसे कोई छूता नहीं था, वो वहीं पड़ा रहता था। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रीड। अब जब उस एनवेलप को मैंने खोला तो उसके अंदर पेपर रखा हुआ ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा था। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। ये एड्रेस था गैल्सबर्ग, इलिनॉइस का, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर रहते थे। चार्ली, व्हाट इज शॉकिंग ट्रेजिडी इस स्टोरी में आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी इंसिडेंट हुआ है शॉकिंग, जो कि हमें दिख रहा है कि चार्ली, मतलब ये लेटर चार्ली को लिखा गया है, वो भी 1894 में। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं विश कर रहा हूँ कि काश तुम सही होते। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और बाद में मुझे पता चला, विश्वास हुआ कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, और चार्ली सच बताऊँ तो ये सच है, जो कुछ भी तुमने मुझसे बताया था वो तुम्हारी सब बातें सच थी। आई फाउंड द थर्ड लेवल, क्योंकि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ, मैं यहाँ पर 2 weeks से हूँ, और अभी राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज़, हमारा जो स्ट्रीट है उससे थोड़ा सा डाउन नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ डेली एक जगह का नाम है। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, वहाँ पर कोई बैठ के पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सी नेली होम, और वहाँ पर फ्रंट पोर्च में बैठकर, फ्रंट पोर्च मतलब कि ये फॉरेन में जो अमीर लोग होते हैं वो अपने घर के बाहर इस तरह का एक पोर्च, मतलब एक बरामदा सा बनाते हैं जहाँ पर बैठकर वो चिल आउट करते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रंट पोर्च। तो ये सारे जो लोग हैं वो फ्रंट पोर्च में बैठकर गाना गा रहे हैं, सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे उन लोगों ने लेमन जूस के लिए इनवाइट किया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, चार्ली लुइजा तुम लोग भी वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तुम उसे ढूंढते रहो। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो कि थर्ड लेवल जब मिल जाएगा और तुम यहाँ आ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा, बेकार नहीं जाएगा। तो ये लेटर लिखा गया है चार्ली को। अभी किसने लिखा है ये लेटर, लेट्स सी। द नोट इज साइन सैम, इस लेटर के नीचे सिग्नेचर था सैम का, सैम वही जो मिसिंग था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसीज। जब मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गया तब मुझे पता चला कि सैम जो है वो $800 के उसने करेंसीज जो है ओल्ड स्टाइल बिल्स में कन्वर्ट करवाए थे। दैट ought टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और इतना जो मनी था वो उसके लिए इनफ था। उसका जो एक अनाज और खाने पीने का जो बिज़नेस था वो सेट करने के लिए इतना मनी उसके लिए इनफ था। ही ऑलवेज सेड दैट इज़ वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, क्योंकि वो हमेशा मुझे बताता था कि यही एक बिज़नेस है जो वो करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो हो सकता था कि वो अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता हो, इसीलिए उसने नया बिजनेस करने की सोची हो। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, क्योंकि गैल्सबर्ग इलिनॉइस 1894 में तो वो अपना पुराना बिजनेस कर ही नहीं सकता था। अभी उसका पुराना बिजनेस क्या था, सैम कौन है, हिज ओल्ड बिजनेस, क्या आप जानते हैं उसका ओल्ड बिजनेस कौन सा है? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्यों? क्योंकि सैम वही है मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ट्विस्ट है स्टोरी में। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो जैक फिनी हैं वो फ़िक्शन के ऊपर लिखते हैं, साइंस के ऊपर लिखते हैं। उनकी स्टोरियाँ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि स्टोरी में एक्चुअल हुआ क्या है। तो यहाँ हमें पता चला कि जो सैम है वो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, और वो उसकी बातें सुन के वो खुद ही थर्ड लेवल में 1894 में पहुँच चुका है, और वो अब चार्ली को भी इन्वाइट कर रहा है। दैट्स इट, यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है ये कंप्लीट होती है। और मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि यू हैव टू राइट डाउन इन ए नोटबुक। एंड वन मोर क्वेश्चन, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जाता है वो ये है कि क्या चार्ली को थर्ड लेवल मिल जाता है, और ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, मतलब उसका ड्रीम है या फिर रियली वो थर्ड लेवल फाइंड आउट कर लेता है या फिर गया होता है वहाँ पर।
तो आपको इसके आंसर में यस लिखना है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे हमें उसके रीज़न्स बताए गए हैं कि वो थर्ड लेवल में जाता है तो काफ़ी सारे चेंजेस दिखता है, जैसे कि जो टिकट विंडोज़ है वो फ्यूअर है, स्मॉल रूम्स हैं, ब्रास स्पिटोन्स रखा हुआ है, फनल शेप के स्टैक्स चिमनी वाले इंजन हैं, और मतलब जो वहाँ के ड्रेसिंग सेंस है वो भी काफ़ी पुराने ज़माने जैसे दिखने वाले हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे रीज़न्स दिए गए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि चार्ली रियली थर्ड लेवल पर गया था और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है वो उसे मिल गया था। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।